Students, today we'll start with work or energy. So you know about work. What is students work? How to calculate work? Sir, the product of force and displacement. Product of force and displacement. Yes or no? But students, see, let I'm saying something. That I'm drawing a figure here. Let a body is at this position. So its weight is acting downward, correct? Yes, sir. The body just got displaced. This is the displacement of the body. It was initially at this point A. Now it moved to point B. The displacement is S. Yes or no, students? Yes, sir. If I will Yes, ask sir. what is the gravitational work done? Gravitational work done. Weight. What is weight? mg, na? That is the gravitational force on the body, na? mg. Yes. That means how much force the gravity is acting, how much the gravity is putting the force on the body, and that force also we say gravitational force. Yes or no? The gravitational force. I'll say is gravitational force. Okay. Students, mg is acting in this direction. Displacement is in this direction. So how could I multiply both mg and displacement? To multiply them, I have to bring them to a common frame of reference, ना? दो क्वांटिटी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक एक डायरेक्शन में अलग सा डायरेक्शन पे है, दूसरा और एक डायरेक्शन पे है, तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा उनको? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. और स्टूडेंट्स, और एक चीज है, वर्क जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट? Yes, sir. Work is a Yes, scalar sir. quantity because work is not having any particular direction. And friend, work is equal to force into displacement. जबकि force एक वेक्टर क्वांटिटी है. Force is a vector quantity. Yes, sir. And displacement is also a vector quantity. I'm multiplying two vector quantities and the result is a scalar quantity. That means vector multiplied with vector can give a scalar quantity, can also give a vector quantity. Friends, in vector, there is a chapter in 11th vector. You will study about vector product. What? Vector product. Just a brief idea to you. Dot product and cross. And dot product and cross product. Dot product is known as what? Scalar product. Dot product is known as what? Scalar product. Or we say it as scalar product because the result is scalar. So from there only you know if A dot B I am writing, that means AB cos theta. Yes or no? Yes, sir. AB cos theta. Theta is the angle between A and B. So here if I will say you W is equal to, definitely W is equal to F dot S. F dot S. That is Fs cos theta. Correct? Theta. This is one thing. But a student who is in 9, he doesn't know about dot product and cross product. So in what way we have to make him explain? So student, this is displacement, this is weight, this is force. Yes or no? So I have to take the component of force. I have to take the component of force along the direction of displacement, or the component of displacement along the direction of force. Getting my point here? That means अगर ये mg है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर mg को रिजल्व किया जाएगा तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी mg cos थीटा ना? Yes, sir. And Yes, this sir. component will be mg sin theta. Yes, sir. Neither I will take mg, neither I will take mg sin theta. I will take mg cos theta because it is along the direction of displacement. Got my point? Yes, work is equal to Yes. force and displacement, but it is a half sentence. Work is equal to force into component of displacement along the direction of force. या नहीं तो फिर work is equal to, हम लिख सकते हैं work is equal to not only force and displacement, component of force, component of force, component of force along the direction of displacement. Understood? Along the direction of displacement into displacement. Getting my point? That means I am writing here F cos theta into S. Correct? या नहीं तो फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है force into component of displacement along the direction of force. ये भी सही होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर किसको रिजल्व किया? mg को रिजल्व किया. मान के चलो मैं अभी डिस्प्लेसमेंट को रिजल्व करूंगा, ठीक है? दिस इज थीटा, दिस इज mg. तो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को रिजल्व किया तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? s cos थीटा ना, और इसको परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? s sin थीटा ना. S sin theta. I'll not take s sin theta. जैसे मैंने यहाँ पर mg sin theta नहीं लिया, तो यहाँ पर मैं s sin theta नहीं लूंगा. क्या लूंगा? s cos theta, because that is acting only along the direction of force. So यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? mg into s cos theta. ठीक है? समझ पाया स्टूडेंट्स में क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को?
सो मैं ये बताना Yes. चाहता हूँ Yes. तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हुआ कैसे। अगर ये आपके दिमाग पे है इट्स ओके, डॉट प्रोडक्ट है। अगर नहीं है तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गेटिंग? ये जो मैंने लिखा इसका क्या मतलब है, फोर्स, सिर्फ फोर्स को हम फोर्स रख दिए, अभी मैं फोर्स को रिजल्व नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट को रिजल्व किया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along the direction of force. along the direction of force, along the direction of force। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें उनको एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लाना होगा, तभी जाके ये हो पाएगा आसान। ठीक है, तो वही से हमें पता चला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और उसी के बेसिस पे आप लोगों ने निकाले कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हम। ठीक है, एक पर्सन इस तरह ऊपर उठ के जा रहा है, पर्सन इज गोइंग अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ वो लोड को लेके जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? इज डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ पड़ रहा है, नीचे की तरफ है, mg, Yes, तो एंगल इज 180 डिग्री, सो वर्क डन इज नेगेटिव। अंडरस्टूड? yes, sir. Yes, sir. अगर वो आदमी नीचे की तरफ आ रहा है तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन वर्क डन इज पॉजिटिव। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इज 90 डिग्री देन वर्क डन इज इक्वल टू 0। Zero. तो क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि वो कौन सा फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, लेट्स सी, एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, Yes, sir. तो ध्यान से ये देखना है कि मतलब किस तरह की सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, वही हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक बॉडी है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। लेट मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। फ्रेंड फ्रिक्शन किस तरफ लगता है, Opposite direction. Force of friction. Opposite direction. नॉर्मल फोर्स किस तरफ, Opposite of gravity. Upwards. लेट बॉडी जो है ना वो इस तरफ सामने की तरफ डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, बॉडी गॉट डिस्प्लेस्ड बाय दिस मच, गॉट इट। फिर अगर मैंने पूछा कि वर्क डन बाय एफ अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, वो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन पे है। अगर मैंने पूछा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना होगा, Zero. Zero. अगर मैंने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, Negative. Negative. Sir, minus. नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड? तीनों क्या समझ पाया कि जो फोर्स के वर्क डन वो जिसके लिए पूछ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, गॉट ना। And what is the unit of work? Joule. That is 1 Newton into 1 meter. Yes or no? W is equal to Fs. 1 Newton into 1 meter. That is 1 joule. And CGS unit क्या है? Org. ठीक है? 1 joule is equal to how much org? 10 to the 7 org. 10 to the power 7. Friends, another unit is there. कभी-कभी वो पूछ लेता है. Electron volt भी एक है. Electron volt. Just remember, electron volt उसको लिखा जाता है EV. That is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। हायर क्लासेस में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, कि एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, उसको आप कैलकुलेट करोगे। फॉर नाउ यू रिमेंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.6 into 10 to the minus 19 जूल। मुझे इतना काम करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाया। ठीक है, सो रिमेंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच जूल। 4 ऑप्शन दे सकता है, इसमें से आ सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि कैलोरी को जूल पे कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 कैलोरी हाउ मच जूल, 4.2 जूल। ठीक है, रिमेंबर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है स्टूडेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर? अनदर यूनिट इज आल्सो किलोवाट आवर। वही बता देता हूं अभी यहाँ पर यूनिट के ऊपर। Sir, 3.6 into 10 to the power 6 joule. यस यस यस। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क का यूनिट क्या है, जूल। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। और पावर की यूनिट क्या है, वाट है ना। स्टूडेंट 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 वाट सेकंड ना। 1 watt second. घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, हम बोलते हैं 1 यूनिट का बिल आया, 200 यूनिट, 220 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, दैट मींस किलोवाट मतलब पावर इनटू टाइम। स्टूडेंट्स, पावर इनटू टाइम इज वर्क ना, एंड वर्क और एनर्जी आर इक्विवेलेंट। दैट इज द यूनिट ऑफ आल्सो एनर्जी। दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जो kWhr लिखा हूं दैट इज किलोवाट आवर। क्या है स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अगर मैं उसको वाट सेकंड में बदल दूं तो 10 to the 3 वाट हो जाएगा ना। 1 आवर कितना सेकंड है, 3600 सेकंड है ना।
करेक्ट. सो दैट इज 3.6 into 10 to the power 6 watt second हो गया ना. Getting or not? That is equal to Yes, 3.6 yes, into 10 to the sir. 6 watt second क्या है, जूल है ना. तो थोड़ा ये भी याद रख लेना, 1 Yes. किलोवाट आवर इज हाउ मच जूल. 4 ऑप्शन दे सकता है, उसमें से निकालना होगा. ठीक है, अंडरस्टूड. किलोवाट आवर इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क एंड आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. लेट्स स्टूडेंट, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह एक वॉल है, ये भी एक वॉल है स्टूडेंट्स. ठीक है, दिस इज आल्सो ए वॉल. यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, मान के चलो मैंने एक लैडर को यहाँ पर रख दिया. गेटिंग माय पॉइंट ना. लैडर का मास m दिया हुआ है, समझ पा रहा है? तो Yes, sir. तो इस लैडर के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना. सही. तो Sir, वो MG. mg या mg इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, या इस पॉइंट पे लग रहा है? कहां पर लग रहा है mg? एक बॉडी मैंने यहाँ पर ले लिया, mg कहां पर लग रहा है? हम तो दिखा देते हैं mg नीचे की तरफ, नो प्रॉब्लम, बट एग्जैक्टली वो कहां पर लगता है? Center. अगर अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है, इफ इट इज ए यूनिफॉर्म बॉडी, तो उसकी ज्योमेट्रिक सेंटर पे. कहां पर? ज्योमेट्रिक सेंटर. इसका कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ा है? सेंटर ऑफ मास. क्या है? सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मतलब ये पॉइंट, इज ए पॉइंट, ये बॉडी का एक पॉइंट है where whole weight of the body, whole mass of the body is supposed to be concentrated. The whole mass of the body is supposed to be concentrated. Getting my point? Is supposed to be concentrated. बताऊंगा मैं इसके एप्लीकेशन, डोंट वरी. समझ पे आया स्टूडेंट? सेंटर ऑफ मास क्या है? मैंने बताया एक ट्रायंगल. Yes, सेंटर sir. ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर होगा. एक स्क्वायर है, ज्योमेट्रिक फिगर, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास. मैंने बताया एक रॉड है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? और उसका लेंथ l है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा? l/2 पे. मतलब ज्योमेट्रिक यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए कहां पर रहता है सेंटर ऑफ मास? ज्योमेट्रिक सेंटर पे रहता है. ठीक है, गॉट इट. एक एग्जांपल देके स्टूडेंट समझता हूं. देखो, लेट्स टेक एग्जांपल. जस्ट मैं डिराइव कर रहा हूं, आप लोग देखो. इस तरह एक सपोर्ट है स्टूडेंट्स, और यहाँ से एक थ्रेड से एक पेंडुलम बॉब को लटका गया है. समझ में आ रहा है ना? Yes, लेंथ sir. ऑफ द स्ट्रिंग इज l है. ये पूरा लेंथ जो स्ट्रिंग का है दैट इज l. मास ऑफ द पेंडुलम बॉब m ले लो. मैंने इसको क्या किया? कुछ फोर्स दिया स्टूडेंट्स. आई जस्ट गिव सम फोर्स. मैंने यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगा ना. Yes, sir. That means I am applying the force in this direction. इसी फोर्स इसको लेके यहाँ तक आया. यहाँ पर कुछ एंगल भी सब्टेंड हुआ. ठीक है, और पहले बॉल जो है ना इसी हाइट पे था ना, अभी इसी हाइट पे चला गया. करेक्ट. और ये जो हाइट पे चेंजेस हुआ, लेट दैट हाइट इज h. कितना है स्टूडेंट्स? दैट हाइट इज h. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Sir, L minus H. Correct. Work done in pulling the bob of mass m of a single pendulum of length l through an angle theta. मैंने कितना वर्क किया इसको यहाँ तक लाने के लिए, थीटा एंगल सब्सटेंड करने के लिए. कभी कभी थीटा दे सकता है, कभी कभी एल और एच की फॉर्मेट में भी दे सकता है. ठीक है, इट डिपेंड्स की क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है. तो स्टूडेंट क्या है? फोर्स इज इक्वल टू क्या है? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ना. W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ना. FS cos theta. Yes, sir. तो मैं इस तरफ फोर्स दे रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रहा है. यस सर नो? Positive. Yes, sir. तो अगर मैं Positive. यहाँ पर cos थीटा निकालूं तो cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? cos थीटा इज इक्वल टू यू नो b by h. Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दिस इज थीटा, दिस इज b ना, एंड दिस इज h ना. इसी ट्रायंगल पे, ये जो ट्रायंगल मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट इन दैट ट्रायंगल, Yes, sir. इसी ट्रायंगल पे, ये जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये पॉइंट पे, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा. तो cos थीटा इज इक्वल टू b by h. तो b की जगह पे क्या है? l minus h. करेक्ट. बाय h की जगह में क्या है? टोटल लेंथ ना. L. सो दैट इज क्या हो L. जाएगा? 1 minus h by l हो जाएगा ना. करेक्ट.
सर तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस h Yes, बाई एल, तो sir. सिर्फ h बाई एल कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा थीटा। 1 minus h cos कितना हो theta. जाएगा? h कितना हो जाएगा? 1 minus cos theta 1 whole minus into L. cos theta into whole l। into L. यस सर नो। अगर मैंने पूछा ग्रेविटी किस तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ ना mg, और मैंने इस साइड पे लेके चला गया mg, और ये h हाइट डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गया और क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? सिंपल, सर जी बॉडी ऊपर की तरफ सर डिस्प्लेस हो रहा है और वेट नीचे की तरफ है, तो माइनस mgh। करेक्ट? Minus नहीं बेटा, यहाँ पर वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ ना, जीरो कैसे होगा? यस सर वेट नीचे की तरफ और ये डिस्प्लेसमेंट, हाँ, तो माइनस mgh। और वो थोड़ा ना माइनस mgh पता लगाने के लिए दिया है, वो h को cos थीटा में रिप्रेजेंट करना चाहता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माइनस mg l इंटू 1 माइनस cos थीटा। 1 समझ minus पे आया? cos theta. अगर वो h दिया तो आप तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, अगर h ना देके अगर थीटा दे दिया उसने, 30 डिग्री सबटेंड किया एंगल, तो कितना वर्क हुआ, तो आप इसे कर सकते हो mgl 1 माइनस cos थीटा। गॉट इट? Yes, sir. गॉट इट स्टूडेंट्स? ये हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैंने वहीं पे पूछा वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्क डन बाय कितना? हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हो रहा है यहां से यहां तक ना, सर तो वो क्या हो जाएगा? इफ टोटल लेंथ इज l, ये थीटा है, तो ये l sin थीटा हो जाएगा ना यहां से यहां तक। यस सर I have to Yes, I sir. already told you just before, डिस्प्लेसमेंट along the direction of applied force लेना होगा मुझे। ये सर नो, तो अगर ये लेंथ l है, ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा along the direction of displacement? l sin थीटा ना, both are in same direction ना? Yes, सर sir. नो, Yes, yes sir. sir. तो क्या लिखोगे आप लोग? f मतलब जो फोर्स अप्लाई किया मैंने हॉरिजॉन्टली, मैंने f फोर्स अप्लाई किया इनटू l sin थीटा। समझे? ध्यान से देखना होगा आपको, एकदम क्लैरिटी करके बता रहा हूँ सारे फोर्स के बारे में। समझ पे आया ना? Yes, Yes sir. sir. फ्रेंड्स, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना, Yes sir. टेंशन Yes, ऑलवेज sir. एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो टेंशन किस तरफ काम कर रहा है? इस तरफ काम कर रहा है टेंशन। Yes, sir. करेक्ट? अगर मैं टेंशन इस तरफ काम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट लेकिन कहां से कहां तक हुआ? पहले टेंशन इस तरफ काम कर रहा था, अभी टेंशन इंक्लाइंड होकर काम कर रहा है। तो अगर मैं टेंशन का कंपोनेंट ले लूं तो दो कंपोनेंट आएगा, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, ठीक है नहीं? Sir. Yes sir. समझ पा रहा है ना? सो टेंशन जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैं कंपोनेंट लूंगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट, तो अगर ये कंपोनेंट ले लूं तो दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर। अगर यहां से ले लूं तो वो ऐसे ही तो परपेंडिकुलर था ना डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो वर्क डन बाय टेंशन स्टूडेंट्स इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो, रिमेंबर। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू जीरो। टेंशन तक शायद नहीं आ सकता है, ठीक है, बट आप ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तक याद रखो। समझे थोड़ा क्वेश्चन को? नेक्स्ट सी जस्ट फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या किया कि वही वहां पर तो अभी पेंडुलम को लटका रहा था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक रॉड को, क्या स्टूडेंट्स, ये दिस इज ए रॉड, और और The जिस rod. रॉड का लेंथ जो है ना एल है, लेंथ क्या है? एल है। मैंने रॉड को इस तरह इंक्लाइन करवा दिया, जब ये रॉड इस तरह इंक्लाइन हो जाएगा तो रॉड विल गो टू दिस ना, ठीक है, रॉड विल गो टू दिस और नॉट, एंड दिस इज थीटा। Yes, sir. Yes sir. तो मैंने रॉड को अभी यहाँ पर ऐसे ये किया, तो मैं पेंडुलम था तो इसीलिए मास ले रहे थे, स्प्रिंग का मास जो है ना उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे थे। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन मूव कर रहे हैं यहाँ पर? रॉड को जो यहाँ पर लिया उसका वेट जो मूव किया वहां पर, तो मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो वेट कहां पर कंसंट्रेट हुआ है? Of mass. Center of mass. सेंटर ऑफ मास में। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो मैं उसको ले रहा हूं तो उसकी सेंटर ऑफ मास के साथ में ले रहा हूं। तो इसके सेंटर ऑफ मास कहां पर है? एग्जैक्टली L/2 पे होगा ना, L/2 बीच में। तो L by सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अगर वेट के बारे में बोलते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, CG। और मैंने इसको थीटा इंक्लाइन करवा दिया। दैट मींस पहले सेंटर ऑफ मास इस लेवल पे था, अभी सेंटर ऑफ मास इस लेवल तक चला गया है, जो भी है सेंटर मास अभी यहां तक चला गया है। गेटिंग माय पॉइंट ना? पहले सेंटर मास यहां पर था,
इस लेवल पे था, करेक्ट। सेंटर मास अभी इस लेवल पे चला गया है और ये हाइट आपको दिया हुआ है h, गेटिंग ना? सर क्या करोगे? Yes, sir. सर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस mgh, और माइनस mg तो कर दोगे, h की जगह पे क्या लिखे थे हम पहले? l इंटू वन माइनस कॉस थीटा लिखे थे ना? into 1 होल minus l इंटू वन माइनस, यहाँ पर तो l नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? l/2 लिखेंगे ना, L by 2. l/2। बाकी जैसा है पहले केस की तरह उसी तरह ही रहेगा, समझ पाया? माइनस mg l/2। फ्रेंड समझ पाया कि नहीं? Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. ठीक है। उसी तरह अगर मैंने आपको और एक केस दिया यहाँ पर, लेट आई टोल्ड यू अनदर केस कि ये एक दो सपोर्ट है, जो लेडर की बात में कर रहा था अभी, ठीक है, आई वाज सेइंग अबाउट द लेडर। तो स्टूडेंट्स मान के चलो जो लेडर है ना वो इस तरह पड़ा हुआ था, इट वाज ऑन द ग्राउंड लाइक दिस, और लेंथ ऑफ द लेडर जो है ना स्टूडेंट्स एल था। मैंने क्या किया, उस लेडर को ऐसे इंक्लाइन करके रख दिया, समझ में आ रहा है? मैंने इसको ऐसे Yes, sir. थीटा इंक्लाइन करके रख दिया। तो अभी पूछ रहे थे ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना हो रहा है, ग्रेविटेशनल वर्क डन बताओ, ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना हो रहा है जब ये लाइन पे पड़ा हुआ था, मतलब mg इस तरह था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर था, अभी सेंटर मास जो ग्रेविटी जो यहाँ पर था वो कहाँ तक चला गया, यहाँ तक मैंने उसको हटाया। टोटल लेंथ इज l, करेक्ट। दिस साइड इज हाउ मच, सेंटर ऑफ ग्रेविटी l/2 ना, है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये l/2 है तो ये इतना हाइट तक उठ गया ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ये h मान के चलो माइनस mgh, और h की बदले में, h की बदले में क्या लिखेंगे? L by 2. l/2 क्या? L by 2 1 डिस्टेंस minus. नहीं नहीं L बेटा, by ये 2 नहीं, 1 minus 1 माइनस L कैसे by होगा? 2 साइन थीटा sin लेंगे theta. ना, Sin theta डिस्प्लेसमेंट। होगा. हाँ L ये by डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे हम, 2 साइन थीटा। sin theta. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, mg l/2 साइन थीटा। फ्रेंड्स रिमेंबर, वो साइन थीटा को भी कभी कभी दे सकता है, मतलब इस तरह थीटा है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है कि नहीं? वो बोल सकता है कि बेस इज टू हाइपोटेनियस इज दिस मच, और परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेनियस इज दिस मच, है कि नहीं? मतलब वो रेशियो को डायरेक्टली दे सकता है, साइन थीटा ना देके, 30 ना देके, 1/2 ना देके, 60 ना देके, वो बोल सकता है कि इज इन द रेशियो ऑफ दिस इज टू दिस। तो आप समझ लोगे कि साइन थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू वो दिया रखा है, समझ पाया? एकदम Yes, छोटा sir. छोटा क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिली सिली स्मॉल क्वेश्चंस, बट इसमें कॉन्सेप्चुअल है। फ्रेंड्स अगर अगर मुझे एक बकेट पानी मुझे हटा मतलब वेल से निकालना है, ठीक है? अगर हमें लेट ए बकेट फुल ऑफ वाटर, जो कि बकेट का फुल बकेट जो है दैट इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है, और उसका मास जो है ना स्टूडेंट्स, तो मास ऑफ द बकेट इज m, करेक्ट। और मैंने इसको एक रोप लगा के पुल से वेल से निकाला, ठीक है, और रोप का मास भी दे दिया उसने स्मॉल m, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो मैंने इस लेवल तक पानी को, यहाँ पर था पानी और मैंने यहाँ तक उठा के लाया पानी को, ठीक है। देखो एक चीज, ये तो टोटल एक मास है m, बकेट का कुछ नहीं दिया हुआ है उसने, और लेंथ ऑफ द रोप स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है? रोप का जो लेंथ है कितना दिया हुआ है? l दिया हुआ है। Sir, L. L. पूछ रहा है कि इस बकेट को हटाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, हाउ मच ग्रेविटेशनल वर्क विल बी डन बाय पुलिंग फोर्स, या फिर पुलिंग फोर्स के दौरान कितना काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखो, ये तो टोटल मास है, इसका इसका वेट कितना है? mg है ना, Mg. Yes, मुझे sir. mg MG. तो उठाना Yes, पड़ेगा। sir. mg कितना हाइट तक उठाना पड़ेगा? पूरा मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा, ऊपर तक। Sir, small m भी include होगा. Capital plus small. तो यहाँ पर mgl ले लिए, ये जो पूरा ऊपर तक l हाइट उठ गया तो mgl लिए, लेकिन रोप का जो मास दिया हुआ है, रोप का मास कहाँ पर कंसंट्रेट हुआ है? पूरा पे नहीं है ना, Center पे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं Center. जब मैंने रोप को उठाया, तो रोप को उठाने के लिए कितना काम किया? थोड़ी ना पूरा l लूंगा मैं, l/2 लूंगा ना। L by 2. L by तो 2. मतलब ये जो बड़ा बकेट की पानी को उठाने के लिए मैंने किया mg इंटू l डिस्प्लेस किया, टोटल लेंथ उठाया ऊपर, और रोप का जो मैंने उठाया दैट इज mg तो रहा, स्मॉल mg तो रहा, बट लेंथ कितना उठाया मैंने? L by 2. L by 2. समझ पाया कितना बार किया हम? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, कल कल जो हमने बताए थे
कि जो मैंने लॉज ऑफ मोशन पे बताया था ना कि लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, समझ पा रहा ना? लिफ्ट इज जब ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होता है तो जी चेंज हो जाता है ना? तो उसके रिगार्डिंग अगर एक क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लॉक ऑफ मास m suspended vertically using a rope of negligible mass, if the rope is used to lift the block vertically off, मैं यहाँ पर रोप से उस मास को उठाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? रोप इज यूज्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक वर्टिकली ऑफ, मैं उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ उठाना चाहता हूँ। ये एक्सीलरेशन पे कितने में स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन ए। तो उसने पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन। उठा मैंने। Sir, you are not audible. हाँ वो वॉइस फेड। तो स्टूडेंट सी, यहाँ पर क्या किया हम, ये मास m है, मैंने इसी रोप में उसको h हाइट तक उठाया। कितना उठाया स्टूडेंट्स? h हाइट तक उठाया। बट अगर मैं पूछा कि नॉर्मली वर्क डन बाय टेंशन कितना है, तो आप लोग बोल दोगे सर मैं mg को उठा रहा हूँ और h हाइट पे उठा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे उठा रहा हूँ। बट यहाँ पर एक्सीलरेशन देखे क्या मतलब उसने चेंज, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ कि ये जो g है ना, g नहीं रहेगा, जब ऊपर जाता है तो g क्या होता है, g प्लस a हो जाता है ना, दैट इज Sir, m G इन plus. g प्लस G a plus into A. h। ये थोड़ा दिमाग पे रहना चाहिए। अगर वही ब्लॉक को मैं लोअर की तरफ लाता तो, if it is mass m and with the tension it is coming with a acceleration downward, block is lowered with the acceleration w, so what is the work done? G minus A. एम जी Sir, माइनस G M minus G A. minus A. होल है। g minus a। M होगा तो G minus और A टेंशन होल है। ऊपर की तरफ, बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है नीचे की तरफ, माइनस सिंबल कौन देगा? सर यू आर नॉट ऑडिबल। फ्रेंड्स सर बॉडी बॉडी टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यस सर। अपोजिट डायरेक्शन, 180 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस m g minus a into h आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर प्लीज रिपीट। फ्रेंड्स यहाँ पर बॉडी नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है ना, जब लोअर मतलब बॉडी नीचे की तरफ डिस्प्लेस यस हो रहा है, करेक्ट? यस सर। और टेंशन ऊपर की तरफ है ना, तो एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना दोनों के बीच में। ये तो आप बता दिए सर m g Yes, minus sir. a into h, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन देना भूलना मत। 4 ऑप्शन होगा, वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव वाला कंफ्यूजन भी होगा वहां पर। गॉट इट? Yes, sir. फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं पे मिला होगा, अगर आप कहीं ना कहीं पे मटेरियल्स किए होंगे किसी का। चेन इस तरह हैंगिंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स? चेन की टोटल लेंथ इज l, टोटल मास इज m, ठीक है? 1/n ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग, मतलब 1/3 हैंग कर रहा है, या फिर 1/4 हैंगिंग, या फिर हाफ ऑफ द चेन इज हैंगिंग, इस तरह दिया होगा। समझ पा रहा है? वो पूछ रहे थे Yes, वर्क sir. डन बाय द पुलिंग फोर्स टू ब्रिंग द हैंगिंग पार्ट ऑनटू द टेबल। ये पूरा हैंगिंग पार्ट को मुझे टेबल के ऊपर लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट? पूरा मास कितना है चेन का, m ना, सर एम। तो मुझे थोड़ी ना पूरा मास उठाना होगा। कितना मास उठाना होगा, जो पार्ट हैंग कर रहा है। तो अगर 1/n पार्ट इज हैंगिंग, तो उसी हैंगिंग पार्ट का मास कितना होगा, m/n ना। अगर आधा अगर हैंग कर रहा है तो m/2, अगर 1/3 हैंगिंग कर रहा है तो m/3 मास हैंगिंग कर रहा है, मुझे वही m/n ही उठाना है मास। समझ पाया? Yes, sir. अच्छा, पूरा ये जो चेन लटक रहा है यहाँ से यहाँ तक, थोड़ी ना उसकी मास यहाँ पर लटका हुआ है कि मुझे ये वाला यहाँ से पूरा l/n लाना होगा, नहीं। इसके सेंटर ऑफ मास में मास मतलब कंसंट्रेट हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे ये रोप को उठाना है, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास को उठाना है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर एक्ट कर रहा है उसको उठाना है। पूरा लेंथ नहीं उठाना है, पूरा लेंथ में उठाऊंगा, लेकिन उसकी मास कहां पर कंसंट्रेट हुआ है, सेंटर पे ना। तो मतलब मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कितना उठा रहा हूँ, टोटल लेंथ इज l, कितना पार्ट हैंगिंग कर रहा है, l/n पार्ट इज हैंगिंग, आधा है तो l/2, तो मतलब 1/3 है तो l/3, तो मुझे लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, l/2n। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो g है, g की जगह पे हमने g रख दिए, बट अभी कितना हाइट में उठा रहा हूँ, l/2n। L/2n. So work done in moving the hanging part is how much, m/n into g into h। m/n की जगह पे m/n रखा, g की जगह g रखा, और यहाँ पर l/2n कर दिया, तो कितना आया एक्सप्रेशन,
mgl by 2n square. by 2n square. अंडरस्टूड? ठीक है, उसी तरह उसी लॉजिक पे भी ये अप्लाई किया जा सकता है कि 1/3 हैंगिंग हो रहा था, मैंने उसको हाफ हैंगिंग करवाया, गेटिंग माय पॉइंट, या फिर हाफ हैंगिंग हो रहा था, मैंने उसको 1/3 हैंगिंग करवाया, गेटिंग माय पॉइंट. मतलब मान के चलो पूरा लेंथ जो है ना वो 30 मीटर था, सॉरी 40 मीटर था स्टूडेंट्स. लेट 40 का आधा हैंगिंग कर रहे हैं, मतलब कितना पार्ट हैंगिंग कर रहे हैं? 20 मीटर में 20 मीटर. 40 का 1/4 हैंगिंग कर रहे हैं, मतलब कितना हैंगिंग कर रहा है? 10 मीटर. 10 meter. 10 meter. वो बोल 10 रहा है कि मीटर. मतलब हाफ पार्ट वाज हैंगिंग, मैंने इसको 1/4 हैंगिंग किया. समझ पे आ रहा है ना? Yes sir. Yes, पहले sir. आधा झूल रहा था 20 मीटर, अभी मैंने उसको 10 मीटर हैंगिंग करवाया, तो उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा? तो चेंजेस किस पे आ रहा है? एन पे आ रहा है ना. 10 square. Yes, Yes, sir. sir. mgl by 2 को बाहर ले लूं, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन. समझे? Yes sir. तो वो क्या 1/3 दिया हुआ है या 1/2 दिया हुआ है, कहां से कहां तक? 1/4 to 1/3 ला रहा है या 1 कहां से कहां तक ला रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. ठीक है, बस अगर बात पॉजिटिव और नेगेटिव की हुआ, तो अगर चेन ऊपर की तरफ जा रहा है और डिस्प्ले पुलिंग फोर्स भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है. अगर चेन मैं छोड़ रहा हूं मतलब उसको ग्रेविटी लेके जा रहा है ना, तो ओनली पुलिंग के लिए वो पूछेगा. ठीक है, कितना मुझे चाहिए पुलिंग करने के लिए, तो हमेशा वो छोटे से बड़ा वाला पूछेगा. गेटिंग माय पॉइंट ना? हमेशा वो पूछेगा क्या, मतलब 1 सेकेंड झूल रहा था, हाफ झूल रहा था, अभी 1/4 लिया, मतलब उसके लिए ही पुलिंग करना पड़ेगा. और 1/4 झूल रहा था, हाफ करने के लिए क्या होना करना पड़ेगा? कुछ तो नहीं करना पड़ेगा ना, वो छोड़ने से तो अपने आप आ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यहाँ पर Yes, sir. टोटल 40 Yes, sir. मीटर था, 20 मीटर हैंगिंग कर रहा था. अगर मुझे उसको 10 मीटर हैंगिंग करवाना है तभी जाके मुझे पुलिंग फोर्स देना पड़ेगा. अगर 10 मीटर हैंगिंग कर रहा था, 20 मीटर करना पड़ेगा, तो पुलिंग फोर्स देने की जरूरत ही नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? वो तो अपने आप आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से पुलिंग होके. मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि बच्चे वहां पर एग्जाम पे थोड़ा देखना है कि 1/2 to 1/3 दिया हुआ है कि नहीं. 1/2 माइनस 1 किसको किससे स्क्वायर करना है, थोड़ा दिमाग पे लगाना है कि नहीं. अगर आप बाकी कर लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वो ऑप्शन पे भी होगा. गेटिंग माय पॉइंट?